Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 7, aggregate demand and related concepts. Related concepts. So student, today's our topic is marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. MPC. Actually, uh, in our previous lecture, I have already told you what is marginal propensity to consume. So marginal propensity to consume refers to the ratio of change in consumption expenditure to change in total income. Okay, so MPC explain what proportion of change in income is spent on consumption. So MPC is equal to change in consumption, change in consumption, delta C, and divided by change in income. Change in income. Delta Y. Delta C by delta Y. Okay. So today we will see this MPC by the help of schedule and diagram. So the table number 1. Table 1. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. So this is income. First column, in the first column we show the income Y, rupees in crore. Okay, then consumption C, rupees in crore. In third column we show the change in consumption delta C. Okay, rupees in crore. And in fourth column we show the change in income, delta Y, rupees in crore. Okay, and the last in fifth column we show MPC is equal to delta C by delta Y. Okay, students, so first of all in income 0, 100, 200, 300 and 400. Okay, then consumption is at the 0 level of income, consumption is 40. Then at 100, this is 120 and 200. After that 280 and 360. So change in consumption. So first में तो कुछ नहीं आएगा. Second change in consumption. 120 minus 40, that is 80. 200 minus 120, 80. 280 minus 200 is equal to 80. And 360 minus 280 is equal to 80. Okay, and change in income. 100 minus 0, 100. 200 minus 100, 100. 300 minus 200, 100. And 400 minus 300, 100. Okay.
Now we calculate MPC. So how to calculate this? You know that a formula is delta C by delta Y. So this is our delta C and this is our delta Y. Okay. So 80 by 100, 80 by 100, 80 by 100 and 80 by 100. पहले में तो डैश आएगा फर्स्ट 0.80, 0.8, 0.8, 0.8 and 0.8. So student, this table MPC, in this table you can see कि MPC is 0.80. ठीक है 0.80. When consumption increases from rupees 40 crore to rupees 120 crore with increase in income from 0 to rupees 100 crore, value of MPC remains same at 0.80 throughout the consumption function. Since MPC means delta C by delta Y measures the slope of consumption curve. मैंने कल आपको बताया था कि जो MPC है वो आपके कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है उसको मेजर करती है MPC. So constant value of MPC indicate that the consumption curve is a straight line. जब आपका MPC मेजर करता है आपके कंजप्शन कर्व के स्लोप को, और अगर MPC आपकी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. सो एमपीसी अगर आपकी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सो कंजप्शन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन. कंजप्शन कर्व क्या होगा आपका, वो स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, नाउ वी ड्रॉ अ डायग्राम. So student, we show the income on OX axis. Income rupees in crores. Okay, and on OY axis we show the consumption in rupees crores. ओके, सो अब हमने देखा कि 0.80 ये आपका क्या है, ये आपका हर उस पर इसकी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है. सो आपका सीसी कर्व जो है वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. सीसी कर्व, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ओके, बिकॉज ऑफ MPC is constant, value of MPC is constant. ओके, सो यहाँ पर अगर मान लो अब हमें यहाँ पर ये कोई दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी. ओके, इनके बीच का हमने क्या करना है, मेजर करना है स्लोप. ये हमने लिया. ओके, सो यहाँ पर ये देखिए ये जो चीज है, अब हमने ये दो लिए हैं, बी और ए और बी के बीच का हमने स्लोप बताना है. सो ये आपके पास क्या हुआ, चेंज इन, यहाँ पर नीचे क्या है, इनकम y1 y2 and this one C है, this one M and N. Okay, so this is ये वाला जो है, ये जो डिफरेंस है, this one is delta y, यानी y1 minus y2, y1 minus y1 y2. ओके, तो टोटल y1 y2 है ना. So delta y is equal to y1 y2 and this is, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस है. So delta C, this is Mn. Okay, students. So in this figure, you can see कि एक तो MPC की वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है. सो MPC एट पॉइंट A with respect to point B, that is point B, that is delta C by delta Y, and your Mn, you can say कि Mn is equal to y1 y2. ओके, ये क्या कर रहे हैं, MPC at point A with respect to point B, that is delta C by delta Y, Mn by y1 y2. Clear students?
Now, some important points about MPC we can observe in this schedule and diagram. So first important point is important points about MPC. So first point is value of MPC. Value of MPC varies between 0 and 1. जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. सो वी नो दैट स्टूडेंट कि इंक्रीमेंटल इनकम इज इधर स्पेंट ऑन कंजप्शन और सेव फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, जितना भी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, जितनी भी इनकम इंक्रीज होगी, या तो वो कंजप्शन पर खर्च की जाएगी या वो फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए फ्यूचर में सेव की जाती है. So if the entire additional income is consumed, if the entire additional income is consumed, अगर सारी की सारी हम इनकम कंज्यूम कर लेते हैं, so क्या होगा? That is delta S is equal to 0. ओके, सो वहां पर क्या होगा? जब हमने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, सो एमपीसी, अगर डेल्टा एस हमारा 0 आया, ऊपर 0 है, सो एमपीसी इज इक्वल टू 1. एमपीसी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1. ओके, और इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर हम सारी की सारी सेव कर लें, सो दैट इज delta C is equal to 0, then MPC is equal to 0. Clear students? So in normal situation, value of MPC varies between 0 and 1. क्योंकि अगर हम अपनी नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो ऐसे ये वाली सिचुएशन की सारी सेव कर ले या सारी कंज्यूम कर ले, या सारी सेव कर ले, इस तरह की सिचुएशन जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन है उसमें नहीं आती. इसीलिए ज्यादातर एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है. ओके, now the next point is MPC of poor. MPC of poor is more than that of rich. एमपीसी जो पुअर पीपल होते हैं, यानी जो गरीब होते हैं, उनकी एमपीसी हमेशा रिच के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. तो क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो पुअर हैं उनकी जो अब वो क्योंकि पुअर हैं तो वो तो पहले ही अपनी क्या कर रहे हैं, सिर्फ नीडी गुड्स को ही फुलफिल कर पा रहे हैं. तो अगर उनकी जो एमपीसी होती है, एमपीसी मतलब जो उनका कंजप्शन है, ठीक है, थोड़ी बहुत इनकम इंक्रीज होगी तो वो कंजप्शन पर ही ज्यादातर खर्च होती है. जबकि रिच होते हैं, ठीक है, ये वाली क्लास होती है, तो इस वाली क्लास की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है, तो यहाँ पर इनका जो एमपीसी होता है वो कंपैरेटिवली पुअर के क्या होता है? कम होता है. सो इट हैपेंस बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजप्शन as most of their basic needs remain unsatisfied. On the other hand, rich people spend a smaller proportion as they already enjoy a high standard of living. So similarly, MPC of developing countries like India, Bangladesh, etc. is more than MPC of developed countries like America or England. ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे हमारा इंडिया है या बांग्लादेश है, हमारे यहाँ के एमपीसी क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है हमारी, ठीक है, अभी हम कंज्यूम करेंगे चीजों को, तो यहाँ हमारे कंट्रीज में एमपीसी कंपैरेटिवली अमेरिका या इंग्लैंड जो डेवलप कंट्रीज है उनके कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. Okay, now the third point is MPC falls with successive increase in income.
with successive increase in income. जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होती है, हर इनकम इंक्रीज होने के साथ आपकी एमपीसी फुल होगी. सो इट हैपन्स बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर. आप धीरे धीरे, अगर इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमी रिच होती जा रही है. सो इट हैज द टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट टू इट्स इनकम. तो जब वो रिचर होती जा रही है तो एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो अब क्या करता है, जो इनकम के इंक्रीमेंट के साथ साथ जो कंजम्पशन करने की परसेंटेज होती है वो कंपैरेटिवली पहले के कम होती जाएगी. ओके, तो इसीलिए एमपीसी क्या होगा, वो भी फॉल होगा जैसे जैसे इनकम में इंक्रीमेंट होगा. सो नाउ द नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व. सो इट इज मेजर्ड, द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व. स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व. Yes, it is measured as the ratio between delta C यानी additional consumption and delta Y. Delta Y means additional income, and this is known as, you know that this is known as, क्या बोलेंगे इसको, अगर ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई का रेशो है आपका कंजप्शन कर्व का स्लोप, सो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और अभी हमने पीछे किया है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होती है, आपकी एमपीसी होती है. ओके, एंड दिस इज नोन एज एमपीसी. ओके, सो यहाँ पर आपने, हमने पीछे जो टेबल देखी थी, पीछे जो टेबल बनाई एमपीसी की यहाँ पर, सो इस एमपीसी की टेबल में आपने क्या देखा है कि एमपीसी इज कांस्टेंट एट 0.80. सो ड्यू टू कांस्टेंट एमपीसी कंजप्शन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर. इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंजप्शन फंक्शन कैसा है, लीनियर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी. Comparison between APC and MPC, हमें दोनों का कंपैरिजन करना है. सो फर्स्ट स्टूडेंट बेसिस में अगर हम देखें, सो फर्स्ट मीनिंग अगर हम बोलें, मीनिंग, सो एपीसी का क्या मीनिंग होगा, इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम एट द पॉइंट ऑफ टाइम. And MPC is, MPC, it is the ratio of change in consumption expenditure to change in income over a period of time. Okay, second base is value more than one. Value more than one. वन से ज्यादा होती है वैल्यू, किस में होगी, एपीसी कैन बी मोर देन वन as long as consumption is more than national income. APC more than वन हो सकती है कब, जब आपकी कंजप्शन ग्रेटर देन हो इनकम से, दैट इज टिल द ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी एपीसी वन से ज्यादा होगी. ओके, बट एमपीसी में देखिए, सो एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन वन एज चेंज इन कंजप्शन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम. क्योंकि जब हम एमपीसी क्या है, चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम, और चेंज इन कंजप्शन जो होती है वो कभी भी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं होती. इसीलिए एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन वन. ओके, नाउ द थर्ड बेस इज रीजन टू चेंज इन इनकम. रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम. रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम. So student, APC, when income increases, APC falls, but at the rate less than of MPC. Okay, income increase होती है तो क्या होगी, APC fall होगी,
बट एट द रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी। जिस तेजी से एमपीसी गिरती है उस तेजी से एपीसी नहीं गिरेगी। ओके, बट एमपीसी, when income increases MPC also falls but a rate more than that of APC. Okay, and the last is formula. फॉर्मूला में क्या है, एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई एंड एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन और propensity to save, you can say propensity to save। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कंप्लीट हो गए हैं, या आपका ही कंजप्शन फंक्शन, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। सो लाइक कंजप्शन, saving is also a function of income, that is saving also depend on the level of income। जैसे कि कंजप्शन हमारी क्या है, कंजप्शन जो है वो भी इनकम के साथ उसका रिलेशन था, सेम ऐसे ही सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। इसे यानी इनकम के लेवल पर ही डिपेंड करता है आपकी सेविंग भी। सो सेविंग इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट, सेविंग फंक्शन क्या हुआ, हमें पता है कि फंक्शन क्या होता है, जो रिलेशन बताता है। सो सेविंग फंक्शन refers to the functional relationship between saving and national income। saving and national income। Okay, so S is equal to function of Y. You can write this, S is equal to function of Y, where S is saving, Y is national income, and F is functional relationship। Okay, so saving function or propensity to save shows the saving of household at a given level of income during a given time period। So alternatively, propensity to save show the different level of saving at the different level of income in the economy। एक तरीके से आप propensity to save क्या कह सकते हैं कि जब एक शेड्यूल के अंदर आप डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग को शो करते हो, तो वो क्या हुआ, प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, सो नाउ वी मेक अ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो टेबल नंबर 2, that is saving schedule। saving schedule। So student, in first column we can show income Y rupees crores, in second column consumption C rupees crores, and in third column saving as this is Y minus C। सेविंग कैसे निकालोगे, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो तो सेविंग निकल आएगी आपकी क्रोर्स। सो इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 80 80 के डिफरेंस पे बना लेते हैं हम लोग कंजप्शन को। 40, 120, 200, 280, 360, 440, 440 एंड 520। ओके, एंड सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम माइनस कंजप्शन। सो ये हो जाएगी -40, -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80।
Okay, now we make a diagram. देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें सेविंग आप देख रहे हो नेगेटिव में आ रही है ना स्टार्टिंग में. व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम देन सेविंग इज इन नेगेटिव. तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम. ओरिजिन y minus y x. Okay, and income, we show the income on OX axis. Income rupees in crores. ये हमारा सेविंग कर्व है. एंड यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ हम दिखा रहे हैं ओवर एक्सिस पर सेविंग, सेविंग रुपीज इन करोर्स. ओके, तो सेविंग कब स्टार्टिंग में माइनस से. देखिए अगर हम डाटा भी लेते हैं, मान लो हमारा यहाँ -20 है या -40 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, और जहाँ पर होगा तो देखिए ये इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो सेविंग कर्व का एस एस क्लियर. एस एस दिस वन, अगर आप पॉइंट इज हियर, so this one is the break even point. Break even point. Break even point when saving is equal to 0. कि जब सेविंग यहाँ पर 0 है, so consumption is equal to income. कंजप्शन इनकम के इक्वल है. तो हमने पीछे देखा था कि when consumption is equal to income, then there is a break even point. So on the break even point, saving is equal to 0. ओके, और उससे पहले का जितना भी है, व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम देन सेविंग इज इन नेगेटिव फॉर्म. सो ये इसलिए यहाँ पर ये सारा नीचे क्या हुआ, नेगेटिव में जाएगा. और नेगेटिव में क्या हुआ, ये सारी की सारा जो पोर्शन है हमारा, दिस इज आर डिस सेविंग्स. ये वाला किसको दिखा रहा है, डिस सेविंग्स को. ओके, और ये जो बच्चे लेवल है ये वाला, ये जो है, ये आपके पास जितना आपके पास क्या हुआ, जितनी भी नेगेटिव में सेविंग है, इट मीन्स कि वो आपका जो ऑटोनोमस कंजप्शन है सी बार, वो माइनस में है. ऑटोनोमस कंजप्शन को शो कर रहा है ये. ओके, और इसके बाद ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट. आफ्टर दैट ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आपका सारा सेविंग का है जो पॉजिटिव में है. कंजप्शन इज ग्रेटर देन, कंजप्शन इज लेस देन इनकम, एंड सेविंग इज इन पॉजिटिव, सेविंग इज पॉजिटिव. और ये सारी हमारी सेविंग्स को शो करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो टेबल है जो इसे फिगर से आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व. सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस. यहाँ से एस से स्टार्ट हो रहा है. ये देखिए, ये यहाँ एस से हमने स्टार्ट किया. so saving curve start from point S on the y-axis indicated that there is a negative saving equal to amount of autonomous consumption. क्योंकि जो यहाँ नेगेटिव -40 से स्टार्ट हो रही है, so ये आपकी नेगेटिव सेविंग है और ये ऑटोनोमस नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन. ओके, सो ये किसको दिखा रही है, नेगेटिव सेविंग ऑफ, या फिर इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन व्हेन नेशनल इनकम इज 0. ओके, एंड सेकंड इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व. कैसा स्लोप है सेविंग कर्व का, सो एसएस हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicate the positive relationship between saving and income. Now third point is break even point. This is the break even point. The break even point when s is equal to 0, so saving curve crosses the x axis at point r. ये point r हमने लिया है. So at point r, which is known as break even point, at this point saving is 0 or consumption is equal to income. Okay, and then next is fourth point is positive saving. Positive saving का क्या होगी, after the break even point saving is positive. Okay students, so tomorrow we will discuss the types of propensities to save. Okay, so that's all for today. Have a good day.